جی اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. کیا حال ہیں آپ کے؟ آپ لوگ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے اور ایز یوزل لیکچرز آپ کو باقاعدگی سے ریسیو ہو رہے ہوں گے اور آپ ان کو اسٹڈی بھی کر رہے ہوں گے اور اپنے ایگزام کی تیاری کے اندر بھی یقیناً ان لیکچرز کو یوز کر رہے ہوں گے اور اس کو صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ بھی ساتھ ساتھ کرتے ہوئے چل رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تو تھی تھوڑی سی کچھ بات جو ہمیشہ کی طرح ہر لیکچر کے آغاز میں آپ سے تھوڑی سی چٹ چیٹ کی جا رہی ہوتی ہے میری طرف سے. تو وہ چیز تھی تاکہ آپ جو ہے اس سلسلے کو برقرار رکھ سکیں جو کہ آپ کی ذمہ داری ہے چیزوں کو پراپرلی ریسیو کرنا اور پھر ان کو لیکچرز کو سننا اور انڈرسٹینڈ کرنا. اور پھر اگر کوئی سوال آپ کے ذہنوں میں پیدا ہو رہا ہے تو پلیز ان سوالات کا مجھ سے یا جو بھی آپ کے پاس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوشچن ہے وہ مجھ تک پہنچا دینا. ٹھیک ہے، چلیے. تو اب ہم بات کر رہے ہیں آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہی نیٹ ورک کی کنٹینیوٹی کا ایک لاسٹ ٹاپک تھا جو کہ یہاں پہ رہ گیا تھا. رہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ہم نے نیٹ ورکنگ اور ڈیٹا کمیونیکیشن کے حوالے سے جو کورس کانٹینٹس آپ کے کریکولم کا آپ کے جو بھی کراچی یونیورسٹی کی طرف سے ایشو کیا جانے والا جو کورس کی ڈیٹیلز ہیں اس کے اندر جو چیز ہے اس کو میں نے کمپلیٹلی اپنے اس نیٹ ورک کے ٹاپک کے اندر کور کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس کی ہی سلسلے کا یہ ایک آخری لیکچر ہے جو کہ نیٹ ورک کے نام سے آپ کے کورس میں موجود ہے گا. ٹھیک ہے جی، تو اب ہم اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. تھنکنگ اینڈ ہوپنگ کہ جناب آپ نے وہ تینوں لیکچرز اسی سیکوینس میں سنے ہوں گے جس طرح سے میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ جس انداز میں جو لیکچرز تھے میں نے بنائے ہیں آپ لوگوں کو پریزنٹ کیے ہیں اور آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. میں نے اس وقت یہی آپ سے کہا تھا کہ اس کو اسی سیکوینس میں بیٹا سنیے گا. ایسا نہیں کیجیے گا کہ لیکچر نمبر 4 جو ہے وہ لیکچر پہلے سن لیجیے، لیکچر نمبر 3 جو ہے وہ بعد میں سنیے اور پھر سب سے آخر میں لیکچر نمبر 1. تو پھر وہ جو آپ کے پاس نیٹ ورک کا کانسیپٹ میں نے اتنی محنت سے آپ کے لیے جو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے اس میں آپ کو کنفیوژن رہیں گی. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ اس لیکچر کو اسی سیکوینس میں سنتے چلیں گے جس طریقے سے میں نے نیٹ ورک کی بیسک ڈیفینیشن سے اسٹارٹ کیا تھا اور آج اپنے اس لیکچر کو نیٹ ورک ٹپالوجیز کے اوپر میں اینڈ کروں گا، تو آپ کو یہ جو لیکچر کی سیریز تھی نیٹ ورک کے کانسیپٹ کو بہت حد تک آپ کے ذہنوں میں کلیئر کر دے گی. ٹھیک، چلیے اب ہم آتے ہیں جناب آج کی ٹاپک کی طرف. اسٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے جی، نیٹ ورک ٹپالوجی. تو نیٹ ورک ٹپالوجی سے کیا مراد ہے جناب؟ ہمارے پاس سب سے پہلے جو ورڈ یہاں پہ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہے ہیں وہ دو ہیں. ایک آپ کے پاس نیٹ ورک اور دوسرا جو ورڈ آپ کے پاس اسکرین میں ڈسپلے ہو رہا ہے دیٹ از دی ٹپالوجی. تو دو چیزیں ہم نے نیٹ ورک اور ٹپالوجی کے ان کمبینیشنز میں سیکھنی ہے. ٹھیک ہے، نیٹ ورک جیسا کہ ہم نیٹ ورک کے ٹاپک کو جب ویری انیشیلی دیکھیں تو وہاں پہ اس کانسیپٹ آف نیٹ ورک کو جو ہے وہ سمجھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے اور میں نے اس کو ڈیفائن کیا تھا وہاں پہ. آپ کو دوبارہ سے ریکال کرنے کے لیول پہ میں ذرا تھوڑا سا پھر بتا دیتا ہوں کہ نیٹ ورک کو ہم نے یہ سمجھا تھا، یہ جانا تھا کہ جناب آپ دو یا دو سے زیادہ نوڈس کو جب آپس میں کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک چیز جس کو نیٹ ورک کہتے ہیں وہ اسٹیبلش کرنے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل ایک سمپل سی ایک لائن کے اندر اس نیٹ ورک کو میں نے ڈیفائن کر دیا ہے. ناؤ دی ٹپالوجی. جب ہم نے یہ بولا کہ ایک عدد لے آؤٹ، ٹھیک ہے جی ہاں میں نے ورڈ استعمال کیا لے آؤٹ، کہ جب ہم نے دو یا دو سے زیادہ ڈیوائسز کو آپس میں کنیکٹ کرنا ہے تو اس ڈیوائسز کو، ان نوڈز کو، ان کلائنٹس کو جب ہم کنیکٹ کرنے کی بات کریں گے تو وی نیڈ ٹو ہیو اے لے آؤٹ، کہ ہم اس کی کوئی نہ کوئی فزیکل ارینجمنٹ بنائیں گے کہ ان نوڈز کو، ان کلائنٹس کو جو کہ نیٹ ورک کا حصہ بنیں گے، جو کہ کنیکشن یا کنیکٹیویٹیز اسٹیبلش کریں گے، تو ان کی کوئی فزیکل ارینجمنٹ بھی تو ہونی چاہیے کہ وہ کس طریقے سے فزیکلی ارینج ہوں گے. مثال کے طور پہ میں اگر آپ کو ایک بات بولوں جسٹ میک یو انڈرسٹینڈ، اگر کبھی آپ نے ایکسپیرئنس کیا ہو سینما میں موویز دیکھنے کا، تو وہاں پہ اگر آپ جا کے دیکھتے ہیں تو اس ہال کے اندر، اس سینما ہال کے اندر جو چیئرس کی ارینجمنٹ ہوتی ہے وہ ایک ڈفرینٹ انداز میں ہوتی ہے کہ وہ آپ کے پاس ایک آڈیٹوریم لوگ دے رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کے پاس چیئرز جو ہوتی ہیں وہ چنکس کے اندر اویلیبل ہوتی ہیں، بیچ میں راستہ ہوتا ہے. اسی طرح جب آپ ایگزامینیشن ہال میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی وہی چیئرز ہوتی ہیں لیکن ان کی فزیکل ارینجمنٹ کچھ اور انداز میں ہوئی بھی ہوتی ہے آپ کے پاس.
किसी आप मीटिंग में जाते हैं या कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो वहाँ पे भी चेयर्स आर स्टिल देयर, लेकिन उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट अंदाज में हुई भी होती है। तो इसका मकसद क्या है, हर जगह पे वो चेयर्स तो मौजूद थी लेकिन उनकी फिजिकल अरेंजमेंट वॉज डिफरेंट, और वो जो उनकी फिजिकल अरेंजमेंट है वो उस पर्टिकुलर सिनेरियो को रिप्रेजेंट कर रही है कि क्या आप किसी एक मूवी हॉल यानी कि सिनेमा हॉल या थिएटर के अंदर मौजूद हैं, क्या आप एग्जामिनेशन हॉल में मौजूद हैं, या किसी आप मीटिंग या कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद है। लुकिंग एट दैट पर्टिकुलर फिजिकल अरेंजमेंट आप उस चीज को रियलाइज करते हैं। तो सेम इज द केस ओवर हियर विच इज एक्चुअली द कोर मीनिंग ऑफ द टोपोलॉजी, कि हम यहाँ पे जब नेटवर्क नोड्स को फिजिकल एक लेआउट के अंदर, एक फिजिकल अरेंजमेंट के अंदर लेकर के जाते हैं तो दैट मीन्स दी टोपोलॉजी। तो हम क्या कहते हैं कि हमने कनेक्टिविटीज एस्टैब्लिश की और हमने उन कनेक्टिविटीज को एक खास फिजिकल अरेंजमेंट के अंदर अरेंज किया, और उनकी जो अरेंजमेंट थी दैट लीड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टोपोलॉजी, और ऑल टुगेदर जो चीज हमारे सामने आई दैट इज द नेटवर्क टोपोलॉजी। ये तो आपको समझाने के लेवल की थी, ठीक है जी। चलिए अब हम आते हैं जनाब इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा रीड करते हैं आपके लिए। तो नेटवर्क टोपोलॉजी refers to how various nodes, devices and connections in a network are physically or logically arranged in relation to each other. स्टूडेंट्स क्लियर हो गई बात कि हमारे पास वो जो नोड्स हैं, वो जो डिवाइसेस हैं जिनके दरमियान में जो कनेक्शन एस्टैब्लिश किए गए हैं वो किस तरीके से फिजिकली और लॉजिकली एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशन में आए हुए हैं, और उनकी जो रिलेशन और जो अरेंजमेंट है दैट लीड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। किसी भी जब हम टोपोलॉजी को अरेंज कर रहे होते हैं तो देयर आर सेवरल एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस, ठीक है जी, ऑफ दैट पर्टिकुलर नेटवर्क टोपोलॉजी डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि जब हम कोई भी ये जो अरेंजमेंट जिसको हम टोपोलॉजी का नाम देने के लिए जा रहे हैं, it usually have its advantages in itself and sometimes yakinan some disadvantages too are there which is related to the physical arrangement of network टोपोलॉजी। तो इक्वली हम एडवांटेजेस को भी फेस कर रहे होते हैं और हमें इक्वली डिसएडवांटेजेस का भी सामना करना पड़ रहा होता है जब हम टोपोलॉजीज को सेटअप कर रहे होते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजीज की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास टोपोलॉजी के कॉन्सेप्ट को अगर हम थोड़ा सा आगे लेकर के चलें तो हमारे पास टोपोलॉजी की 2 अप्रोचेस मिलती हैं। वन इज कॉल्ड दी फिजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी and the other one is called the logical network topology। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर इस वक्त डिस्प्ले हो रहा होगा कि हमने टोपोलॉजीज को अगर हम क्लासिफाई कर रहे हैं तो हमारे पास एक फिजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी स्टैब्लिश की जा सकती है और एक हमारे पास लॉजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी होती है। फिजिकल जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि हम जब नेटवर्क को अरेंज कर रहे हैं, नेटवर्क को स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो हम फिजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर कंसर्न है, या फिजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी रेफर्स टू द कनेक्शन एंड द इंटरकनेक्शन, कनेक्शन एंड द इंटरकनेक्शन बिटवीन द नोड्स एंड द नेटवर्क, यानी नोड्स के दरमियान में और उसके साथ साथ जो दूसरे नेटवर्क हैं उनके दरमियान में कनेक्शन और इंटरकनेक्शन की बात की जा रही है यूजिंग द केबल्स एंड सो ऑन। जाहिर सी बात है अगर आपके पास एक नेटवर्क है और फिर एक दूसरा नेटवर्क है और उन दोनों नेटवर्क के दरमियान में नोड्स को भी कनेक्ट किया जा रहा है और आपके पास नेटवर्क के दरमियान में भी इंटरकनेक्शन एस्टैब्लिश किया जा रहा है फिजिकली, तो उस टोपोलॉजी को हम फिजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है जी। चले जी, अब हम आते हैं जनाब अपने अगले पॉइंट की तरफ विच इज एक्चुअली जी लॉजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी। लॉजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी से मुराद क्या है? इट इज जस्ट एन एब्स्ट्रैक्ट, एक सोच, एक थॉट है, एक थिंकिंग का नाम है। जब हम लॉजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जब हम लॉजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी को स्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं तो वी मीन टू रेफर अ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। हम उस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि जनाब किस तरीके से एक नेटवर्क को अरेंज किया जाना चाहिए और किस तरीके से जो डेटा है वो मूव करेगा, किस तरीके से जो है डेटा जो है उसको शेयर किया जाएगा, हम लॉजिकली कहाँ कहाँ डेटा को प्लेस करेंगे, वो डेटा सेंटर्स कैसे होंगे जनाब, और किस तरीके से वो आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे और हमारे पास डेटा जो है वो नेटवर्क के ऊपर मूव कर रहा होगा। ठीक है जी।
तो दैट गिव्स अस द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी। फिजिकली तो आपने कनेक्ट कर दिया, लेकिन जाहिर सी बात है जब हम किसी चीज का फिजिकल एक इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं तो हमारे पास उसका लॉजिकल कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो लॉजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी से मुराद हमारी यही है कि हमारे पास उस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को हम बेहतर तरीके से समझ पाएँ कि हाउ एंड व्हाई द नेटवर्क इज अरेंज, क्यों हम उस फिजिकल टोपोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, हम क्यों उस स्पेसिफिक नेटवर्क अरेंजमेंट को ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम क्यों उस नेटवर्क अरेंजमेंट की ही तरफ पर्टिकुलरली जा रहे हैं। जी उससे मेरी मुराद, उस पर्टिकुलर वो से नेटवर्क से मुराद मेरी यही है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी हैं अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू आर ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट, या हमारी जो उस असेसमेंट के बाद जो एक नीड क्रिएट हुई है वो एक टोपोलॉजी स्टैब्लिश करने के हवाले से, वो सारी की सारी हमारी एक लॉजिकल एक अंडरस्टैंडिंग होगी जिसके बेसिस के ऊपर हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज को फिजिकली डिप्लॉय या इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे होंगे, ताकि डेटा को उस नेटवर्क के ऊपर फिजिकली मूव कराया जा सके, वो सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क की तरफ मूव कर सके। ठीक है जी, तो ये आपके पास एक लॉजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी के कॉन्सेप्ट की तरफ जो है हमें लेकर के जा रहा होता है, फिजिकल और लॉजिकल। आई होप आप दोनों को जो डिफ्रेंशिएट है वो प्रॉपर्ली कर पाए होंगे और समझ पाए होंगे कि फिजिकल से मुराद क्या है, फिजिकल अरेंजमेंट, और लॉजिकल से मुराद क्या है हमारे पास कॉन्सेप्चुअल अरेंजमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है जी, तो हमारे पास जब हम लॉजिकली नेटवर्क को अरेंज कर रहे होते हैं, ठीक है जी, choosing the right topology for the company's operational model that increase the performance, easier to locate faults, troubleshoot errors, ठीक है जी, और हमें इफेक्टिवली रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर मदद दे रही होती है। जब हम लॉजिकली नेटवर्क टोपोलॉजी को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, उसके लॉजिकल मॉडल को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर पा रहे होते हैं, उस लॉजिकल मॉडल को अपने जहन में रखते हुए आगे मूव कर रहे होते हैं, तो हम अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की बात कर रहे होते हैं, फॉल्ट्स को टॉलरेट करने की बात कर रहे होते हैं, फॉल्ट्स को सेटल डाउन करने की बात कर रहे होते हैं, ट्रबल शूटिंग या जो एरर्स जनरेट हो रहे होते हैं हम उसको मिनिमाइज करने की बात कर रहे होते हैं, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात कर रहे होते हैं। ये सारा का सारा हमारे पास उस लॉजिकल डिजाइनिंग ऑफ टोपोलॉजी का हिस्सा रहता है, क्योंकि जब आपने वो चीज़ें लॉजिकली अंडरस्टैंड कर ली, ठीक है, फॉल्ट टॉलरेंस को भी देख लिया, ट्रबल शूट को भी देख लिया, रिसोर्सेज को भी प्रॉपर्ली मैनेज कर लिया, और फिर हम उस मॉडल को जो कि लॉजिकली हमने डेवलप किया था, अब हम उसकी फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं, फिजिकली नोड्स को आपस में कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं, हम एक राइट टोपोलॉजीज को एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हैं, डिजाइन और डिप्लॉय करने की बात कर रहे हैं उस फिजिकल टोपोलॉजी को, तो यकीनन वो टोपोलॉजी जो है वो अगर कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल मोड से गुजरी भी होगी तो वो चीज़ बहुत बेहतर होगी, बहुत एफिशिएंट होगी, बहुत स्मार्ट होगी, बहुत स्मूथ होगी, और वहाँ पे आपके पास टोपोलॉजी को जब डिप्लॉय कर दिया जाएगा तो वो यकीनन एक बेहतर अंदाज में आपको एक बेहतर चीज़, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो प्रोवाइड करने का जरिया बन गई होगी। ठीक जी, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं हमारे पास वही जो हम बार बार एक चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, बोले जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रही है दैट इज दी बेसिक टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। जी हाँ, मैंने वर्ड बेसिक कहा जनाब, प्लीज इसको सुन लीजिएगा, मैंने कहा बेसिक टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट राइटर्स आपके पास, डिफरेंट जो टेलीकॉम की बुक्स हैं वो आपको डिफरेंट टोपोलॉजीज का जिक्र कर रही होती हैं अपनी बुक्स के अंदर, राइटर्स अपनी बुक्स के अंदर डिफरेंट टोपोलॉजीज को हाईलाइट कर रहे होते हैं, चीज़ों को अगर आप गूगल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट टोपोलॉजीज के नाम आपको सुनने और देखने को मिल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास चंद बेसिक टोपोलॉजी से मुराद यही है कि ये चंद टोपोलॉजीज हैं जो बेसिकली समझने और अंडरस्टैंड और डिप्लॉय करने के लेवल पे यूज़ की जा रही होती है। ठीक है जी, तो अगर हम देखते हैं तो वी यूजली हैव 4 बेसिक काइंड्स ऑफ टोपोलॉजीज, 4 बेसिक काइंड्स ऑफ टोपोलॉजीज हमारे पास होती हैं जिनको वी शुड अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट टोपोलॉजी इन अ फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक, तो पहली जो हमारे पास टोपोलॉजी उस सीरीज की है दैट इज दी बस टोपोलॉजी, नंबर 1 BUS बस टोपोलॉजी। दूसरी टोपोलॉजी जो है वो हमारे पास जो इस सिलसिले का हिस्सा बनती है दैट इज दी स्टार टोपोलॉजी, STAR स्टार टोपोलॉजी।
तीसरी टोपोलॉजी जो हमारे पास इस नेटवर्क टोपोलॉजी का पार्ट है इज द रिंग टोपोलॉजी एंड द फोर्थ वन इज द हाइब्रिड टोपोलॉजी। जी हाँ जनाब, इट्स नॉट द हाइब्रिड, इट्स हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपके सामने 4 नेटवर्क टोपोलॉजीज के इस वक्त नाम लिए हैं, starting from the one which was the basic topology, number 2 was the star topology, number 3 was the ring topology and number 4 was the hybrid topology। तो ये 4 हमारे पास बेसिक टोपोलॉजीज नेटवर्क के हवाले से, और अगर हम देखें तो ये लॉजिकल नहीं है बल्कि फिजिकल टोपोलॉजीज जो हैं वो आपके सामने जो है वो नजर आ रही हैं स्क्रीन के ऊपर। ठीक है जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पास अपनी पहली टोपोलॉजी को समझने की तरफ हम बढ़ते हैं जनाब। अब अगर स्क्रीन के ऊपर आप देखें तो यहाँ पे आपको बस टोपोलॉजी लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, और मैं जरा पहले इसके छोटे से आपको बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं जरा आपके सामने इस डायग्राम को डिस्प्ले कर देता हूँ। ठीक है जी, तो ये आपके पास प्लीज पहले जरा डायग्राम को फोकस कर लीजिएगा और इसको प्लीज डायग्राम को अपने जहनों में रखिएगा। ठीक है, ताकि अब जब मैं इसको ब्रीफ करूं, जब मैं आपको समझाऊं तो ये डायग्राम आपके जहनों में होगा, तो आप प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि बस टोपोलॉजी के ऊपर बेसिक किस अंदाज में आपके पास जो डेटा है वो ट्रेवल कर रहा होता है, या टोपोलॉजी पे किस तरीके से फिजिकली आपकी डेटा सिग्नल्स जो हैं वो डेटा पैकेट्स जो हैं वो ट्रांसमिट हो रहे होते हैं। ठीक है जी, आई होप आपने डायग्राम देख लिया होगा। चलिए अब हम आते हैं जनाब अपनी इस बेसिक बस टोपोलॉजी की डेफिनेशन की तरफ। ठीक है जी, तो अगर हम इस बस टोपोलॉजी को अंडरस्टैंड करें और अगर इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो बस टोपोलॉजी के अंदर हमारे पास क्या है कि एक चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक चीज हम देख रहे हैं कि जनाब एक सिंगल केबल है। ठीक है, एक सिंगल केबल है और उस सिंगल केबल से तमाम जो सिस्टम्स हैं जिनको हम क्लाइंट्स कह सकते हैं, जिनको हम नोड्स कह सकते हैं, वो इस सिंगल केबल से अटैच हैं ऑन द ईदर साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर केबल, यानी केबल के दोनों तरफ दोनों जानिब जो हैं हमारे पास जो हैं उस केबल से सिस्टम्स कह लीजिए, नोड कह लीजिए या नेटवर्क नोड कह लीजिए, कंप्यूटर्स कह लीजिए, वर्क स्टेशंस कह लीजिए, वो सारे के सारे उस सिंगल केबल से कनेक्टेड हैं। तो ये जो केबल जनाब हमारे पास जो सिंगल केबल, दैट इज द सिंगल केबल विच इज रनिंग फ्रॉम लोकेशन ए टू लोकेशन बी, या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जो जा रही है, तो ये केबल जो है जनाब इसको हम बैकबोन केबल के नाम से भी जानते हैं। हम इसको बैकबोन केबल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जस्ट लाइक अब बैकबोन ये एक्ट कर रही होती है। वाई? बिकॉज पूरे की नेटवर्क की डिपेंडेंसी जो है वो इस केबल की हेल्थ पे डिपेंड कर रही होती है। जी हाँ, मैंने दोबारा कहता हूँ कि नेटवर्क की जो आपके पास पूरा का पूरा जो बैकबोन है उसके ऊपर आपके नेटवर्क की हेल्थ डिपेंड कर रही होती है। ये तो इस वजह से इसको एक बैकबोन केबल का नाम दिया जाता है। ठीक है जी, तो जो भी हमारा डेटा फ्लो हो रहा होता है वो इसी बैकबोन केबल के ऊपर फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, और यही केबल जो है वो डेटा को रूट कर रही होती है डिफरेंट नोड्स के दरमियान में, जो कि बस टोपोलॉजी का हिस्सा होते हैं। ठीक, चलिए जब आते हैं जनाब इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा पढ़ देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पेपर भी देने और डेफिनेशन भी रिक्वायर्ड है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। आप डेफिनेशन को देख लेते हैं। A bus topology allows all the devices on a network along a single cable running in a single direction from one end of the network to the other end। तो बात क्या की गई, वही जैसे मैंने भी आपको बयान किया कि जो बस टोपोलॉजी है इट अलाउज द डिवाइसेस, कौन से डिवाइसेस, जो कि नेटवर्क के ऊपर मौजूद हैं, ऑल दोज डिवाइसेस जो कि आपके पास नेटवर्क के ऊपर मौजूद है, जो इस सिंगल केबल के साथ कनेक्टेड हैं, सिंगल केबल के ऊपर हुक्ड अप है। ठीक है, जो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की तरफ जो केबल जो है वो जा रहा है। ठीक है जी, तो इस केबल को जो कि आपके पास एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की तरफ फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द नेटवर्क टू द अदर पार्ट जो है वो जो मूव कर रही है, इसको हम बैकबोन केबल भी कहते हैं। और द डेटा फ्लो ऑन द नेटवर्क ऑल्सो फ्लोज द रूट ऑफ द केबल मूविंग इन वन डायरेक्शन। तो जो भी हमारा डेटा है वो इसी केबल पे फ्लो कर रहा होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपके पास कोई भी सिस्टम किसी एक पीसी से किसी दूसरे पीसी को डेटा भेजने की बात करेगा, तो वो इसी सेम बैकबोन केबल, इसी सेम रूट को इस्तेमाल करेगा
for the purpose of data sending as well as for the purpose of data receiving. ठीक, चलिए जी हम आते हैं छोटे से कुछ इसके एडवांटेजेस को देख लेते हैं कि जनाब इसके एडवांटेजेस से क्या मुराद है जनाब, या एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी को हम किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं जनाब। तो जनाब एडवांटेज के लेवल पे अगर हम देखते हैं तो बस टोपोलॉजीज आर अ गुड कॉस्ट इफेक्टिव चॉइस फॉर स्मॉलर नेटवर्क्स बिकॉज द लेआउट इज सिंपल। चलिए पहला बड़ा आसान सा एडवांटेज है कि ये आपके पास एक सिंपलेस्ट टाइप ऑफ टोपोलॉजी होती है। बस टोपोलॉजी इज अ सिंपलेस्ट काइंड ऑफ टोपोलॉजी टू गो फॉर और टू फिजिकली डिप्लॉय। ये जो आपके पास बस टोपोलॉजी है इट इज क्वाइट सिंपल इनफ, कॉस्ट इफेक्टिव है। मकसद क्या है कि कॉस्ट इफेक्टिव का, कि आपने सिर्फ एक सिंगल केबल को लेआउट को डिजाइन करना है, उसको फिजिकली इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है जी, और फिर आपने उसको नोड्स को उसके साथ उस बैकबोन केबल के साथ जो है उसको अरेंज कर देना है। जब हम उस बैकबोन केबल के साथ उसको अरेंज करके कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करेंगे तो डेफिनेटली या तो वो केबल आपके पास कोएक्सियल केबल होगा जो एज अ बैकबोन केबल ऐड कर रहा है, या आपके पास वो किसी कैटेगरी कैट 6 का केबल होगा, या फिर आपके पास वो फाइबर ऑप्टिक केबल होगा जो कि आपके पास एज अ बैकबोन इस्तेमाल किया जा रहा होगा। और फिर हम यूजिंग दी स्पेशल काइंड्स ऑफ केबल कनेक्टर्स, जैसे कि हम अगर कैटेगरी 5 कैटेगरी 6 की बात करते हैं केबल्स के हवाले से, जो कॉपर बेस्ड केबल्स होते हैं, तो वहाँ पे हम RJ45 कनेक्टर्स के जरिए केबल को हम अपने बस टोपोलॉजी से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके दूसरे एंड के ऊपर सिस्टम हमारा मौजूद होगा, ठीक है जी। और हम अपने जैसे ही इस RJ45 वाले केबल को हम उस नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे तो इसका मकसद क्या हुआ कि हमारे पास हम उस टोपोलॉजी का हिस्सा बन गए। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस ऑफ टोपोलॉजी की। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी के अंदर देखते हैं तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज हमें इस बस टोपोलॉजी का नजर आता है, जैसे कि मैंने भी आपसे कहा कि एक सिंगल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, एक बैकबोन जो केबल है वो हमारे पास मौजूद है और पूरा का पूरा जो नेटवर्क ट्रैफिक है वो उसी बैकबोन केबल को इस्तेमाल कर रहा है फॉर दी मूवमेंट फ्रॉम वन लोकेशन टू दी अदर लोकेशन। यानी सिस्टम 1 से अगर सिस्टम 10 की तरफ डेटा जाना है, या सिस्टम 30 से सिस्टम 40 की तरफ डेटा जाना है, सिस्टम 1 से सिस्टम 22 की तरफ डेटा जाना है या फिर आना है, तो हमारे पास एक ही लिंक है, एक ही वो बैकबोन केबल है जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा डेटा को सेंड करने का और रिसीव करने का। एंड टू समहाउ अनफॉर्चुनेटली, खुदा न खास्ता, अगर वो केबल ब्रेक हो जाता है तो फिर क्या होगा? जी जनाब, बिल्कुल वही होगा जो आपके जहनों में आया कि पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो आपका डाउन हो जाएगा। एडवांटेज था जनाब कि कॉस्ट इफेक्टिव है, अच्छी बात है जनाब, कॉस्ट सस्ते, कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं लेता, आसानी से डिप्लॉय हो जाता है। तो यकीनन जाहिर सी बात है जब देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस तो हमेशा उसके डिसएडवांटेजेस भी किसी भी चीज़ के साथ साथ चल रहे होते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है कि अगर वो केबल आपके पास जो बैकबोन केबल था अगर वो एनी हाउ किसी भी तरीके से डैमेज हो जाता है या किसी वजह से, जैसे कि आजकल अगर आप देख रहे हैं हालात से मुराद हमारी क्या है, तो एनी रीजन वो आपके पास किसी भी क्लाइमेटिकल इफेक्ट की वजह से वो डैमेज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है जी, तो होगा कि आपके पास, या वो आपके पास अनइंटेंशनली जो है वो किसी ना अंदाज में वो कट हो जाता है या ब्रेक हो जाता है, तो होगा क्या आपके पास कि पूरी की पूरी जो बस टोपोलॉजी है उसके ऊपर मौजूद तमाम के तमाम जो नोड्स हैं दे वोंट बी एबल टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। वो सारा का सारा नेटवर्क आपका, वो सारा का सारा टोपोलॉजी जो है वो सारी की सारी टोपोलॉजी विल not be able to communicate, will not allow to communicate or any system on that particular topology। ठीक है जी, तो हमारा सारा का सारा नेटवर्क विल गो डाउन इन केस ऑफ बस टोपोलॉजी। ठीक है जी, और फिर जब हम उसको रेक्टिफाई करने की बात करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास वो एक टाइम कंज्यूमिंग जॉब होगी कि हम दोबारा उस बैकबोन को सही कर सकें और फिर हम दोबारा कनेक्टिविटीज को इस्टेब्लिश कर सकें। ठीक है जी, ये था हमारे पास डिसएडवांटेज ऑफ द बस टोपोलॉजी। चलिए जब हम आते हैं अपनी अगली टोपोलॉजी की तरफ विच इज एक्चुअली द स्टार टोपोलॉजी। जी हाँ, स्क्रीन के ऊपर जो हमारे पास दूसरी टोपोलॉजी नजर आ रही है वो हमारे पास है जी स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी से क्या मुराद हमारे पास ली जाती है? स्टार टोपोलॉजी को अगर हम देखते हैं तो स्टार टोपोलॉजी के अंदर में सबसे पहले जस्ट लाइक द प्रीवियस वन में आपके सामने ये डायग्राम को डिस्प्ले कर दूं। ये डायग्राम आपको नजर आ रहा है,
जैसा कि नाम से जाहिर है हमारे पास स्टार, तो सम वॉट जी ये कुछ सितारा नहीं है जनाब, सम वॉट लेकिन स्टार की फॉर्म में जो चीजें हैं वो आपके पास हम कॉन्सेप्चुअली कहते हैं कि जनाब आपके पास जो नोड्स हैं, आपके पास जो सिस्टम्स हैं, वो आपके पास इस तरीके से, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं इस वक्त, इस तरीके से आपके पास एक स्टार मॉडल के अंदर, एक स्टार टाइप चीज के अंदर जो है एक फिजिकली जिसको आप देख रहे हैं, इसका डायग्राम जो आपके पास स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, एक स्टार लाइक डिस्प्ले आपको दे रहा है। तो उस अंदाज में आपके पास जो नेटवर्क नोड्स हैं वो स्टार टोपोलॉजी का हिस्सा होती हैं या फिर स्टार टोपोलॉजी में कनेक्टेड होती हैं। और एक चीज बड़ी सेंट्रल पॉइंट को नोट कीजिएगा, प्लीज जहन में रखिएगा, ठीक है जी, ताकि मैं जब समझाऊं आपको तो आपको बआसानी अंडरस्टैंड हो सके। चलिए, स्टार टोपोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जो अगर टोपोलॉजी है, जी हाँ, सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाली जो हमारे पास टोपोलॉजी है, सबसे ज्यादा जो हम स्मार्ट टोपोलॉजी के लेवल पे जिस टोपोलॉजी को कंसिडर कर सकते हैं, जो कि हमें किसी भी लेवल पे एक एफिशिएंट कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सकती है। तो जब इस तरह की बातें जहन में आती हैं तो ऑल ऑफ अ सडन जिस टोपोलॉजी को डिप्लॉय करने का हर ऑर्गेनाइजेशन सोचती है तो वो होता है जनाब स्टार टोपोलॉजी। अच्छा, एक चीज की ध्यान में रखिएगा कि टोपोलॉजीज के लेवल के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि जी जनाब पहले बस आई थी टोपोलॉजी, फिर उसके बाद स्टार टोपोलॉजी आई, फिर उसके बाद रिंग टोपोलॉजी आई। ऐसी कोई स्टोरी नहीं है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तीनों टोपोलॉजीज, चारों टोपोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं। जो टोपोलॉजी हम कॉन्सेप्चुअली उस लेआउट को, उस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हुए मॉडल करते हैं, हम उसी टोपोलॉजी को उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को देखते हुए उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या उस सोल्यूशन को हम डिजाइन करके उसी पर्टिकुलर टोपोलॉजी को उस एनवायरनमेंट में अप्लाई कर रहे होते हैं। तो समटाइम्स आपके पास स्टार टोपोलॉजी इज इफेक्टिव, समटाइम्स जी आपके पास बस टोपोलॉजी इफेक्टिव होती है, और समटाइम आपके पास जो है वो रिंग और हाइब्रिड जो होती हैं वो टोपोलॉजी जो होती हैं वो इफेक्टिव होती हैं। ठीक है जी, तो ये ऐसा नहीं है कि आपके पास एक टोपोलॉजी खत्म हो गई तो फिर दूसरी टोपोलॉजी जो है वो आपके पास आई थी और आपने उसको डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है, ऐसी कोई मामला नहीं। ठीक है जी, चलिए जब हम आते हैं अपने स्टार टोपोलॉजी की तरफ, तो स्टार टोपोलॉजी का जो सबसे बेहतर, सबसे बेहतरीन चीज जो स्टार टोपोलॉजी के हवाले से कंसिडर की जाती है, दैट इज व्हाट, कि आपके पास जितने भी नेटवर्क नोड्स होते हैं वो आपके पास सेंट्रली लोकेटेड डिवाइस, एक सेंट्रली लोकेटेड डिवाइस, जैसे कि आपको मैं दोबारा से फिगर आपके सामने ये डायग्राम डिस्प्ले करता हूँ स्क्रीन के ऊपर, अगर आप देखें तो सेंट्रली लोकेटेड एक डिवाइस है जिसको हब लिखा हुआ है। ठीक है जी, अब तो हब्स नहीं होते, जाहिर सी बात है, आज के ज़माने के अंदर जो हमारे पास हैं स्विचेस पाए जाते हैं, हब हमारे पास एक ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है। ठीक है जी, तो सेंट्रली कनेक्टेड स्विच या सेंट्रली कनेक्टेड हब होता है, सेंट्रली लोकेटेड, सॉरी, सेंट्रली लोकेटेड हब होता है, जिससे हमारे पास तमाम की तमाम नोड जो होती हैं वो सेंट्रली लोकेटेड डिवाइस, जो प्रॉपर एक वर्ड है, मैं डिवाइस सेंट्रली लोकेटेड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, इट कैन बी हब, इट कैन बी स्विच, आई बात समझ में, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग प्लीज ये बात ध्यान में रखिएगा कि अब हब्स आर नो मोर अवेलेबल। हमारे पास जो स्विचेज हैं वो हमारे पास राइट नाउ स्टार टोपोलॉजीज के अंदर यूज किए जा रहे होते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हवाले से स्विचेस को बेस करते हुए हम स्टार टोपोलॉजीज को डिजाइन और डिप्लॉय कर रहे होते हैं। तो सेंट्रली लोकेटेड जो डिवाइस जिसको हम स्विच का नाम दे रहे हैं उससे तमाम के तमाम सिस्टम जो है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं यूजिंग अ ट्विस्टेड पेयर केबल और अ फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है जी, तो हमारे पास सारे की सारी जो मैनेजमेंट है वो आपके पास इस सेंट्रली लोकेटेड डिवाइस, यानी कि जो हमारा स्टार टोपोलॉजी का जो स्विच है, इट स्टार्ट एक्टिंग एज अ सर्वर। ठीक है जी, और जो भी हमारे पास जब डेटा सेंड करना होता है तो वो पहले आपके पास सेंट्रल लोकेटेड डिवाइस के पास आता है, यानी स्विच के पास आता है। फिर स्विच क्या करता है, वो देखता है जनाब अगर कंप्यूटर नंबर 1 ने कोई मैसेज जनरेट किया है कंप्यूटर नंबर 25 के लिए, तो वो क्या करेगा, कंप्यूटर नंबर 1 से मैसेज को लेगा, डेटा को लेगा, सिग्नल को लेगा और फिर उठा करके रीडायरेक्ट कर देगा कंप्यूटर नंबर 25 की तरफ। तो क्या हुआ, हमारे पास उस डेटा को मैनेज किसने किया, उस सेंट्रली लोकेटेड डिवाइस जिसको हम स्विच का नाम दे रहे हैं, उसने काम सर अंजाम दिया। फिर अगर कोई सिस्टम, जो सिस्टम नंबर 2 है वो सिस्टम नंबर 5 के लिए डेटा सेंड करना चाहता है, तो सिस्टम नंबर 2 से वो सेंट्रली लोकेटेड डिवाइस डेटा को रिसीव करेगी और 5 की तरफ
रीडायरेक्ट कर देगी, और अगर 5 8 के लिए भेजना चाह रही है तो 5 से रिसीव करेगी, और सिस्टम नंबर 8, कंप्यूटर नंबर 8, पीसी नंबर 8, क्लाइंट नंबर 8, वर्क स्टेशन नंबर 8, जो भी आप नाम दे लें उसकी तरफ डेटा रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा विद दिस सेंट्रली लोकेटेड डिवाइस विच इज एक्चुअली अ स्विच। ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और डेवलप हो रहा है कि चीजें बहुत आसानी से मैनेज भी हो रही हैं, और उसके साथ साथ डेटा जो ट्रेवल हो रहा है उसके अंदर डेटा ट्रांसमिशन में भी टाइम बहुत हद तक मिनिमाइज हो गया, बजाय इसके कि पहले वो 1 पे आता, फिर वो 2 पे जाता, फिर 3 पे जाता, फिर 4 पे जाता, फिर 25 पे पहुंचता। तो नेटवर्क के अंदर डेटा को जो ट्रेवल कराया जा रहा है इतनी सारी नोड से, तो डेफिनेटली टाइम भी तो कंज्यूम होता। तो स्टार टोपोलॉजी डिप्लॉय करने से क्या हुआ, आपके पास उस सेंट्रली लोकेटेड डिवाइस ने वो सारी की सारी मैनेजमेंट आपके लिए आसान कर दी, डेटा ट्रांसमिशन सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ आसान कर दी, पूरी की पूरी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस सेंट्रली लोकेटेड डिवाइस ने संभाल ली, ताकि कोई भी चीज आपके पास सोर्स यानी जहां से मैसेज या डेटा जनरेट किया गया है और डेस्टिनेशन जिसके लिए जनरेट किया गया है वहां तक बआसानी पहुंच सके। ठीक है जी। तो ये था जनाब आपके पास एक स्टार टोपोलॉजी। और स्टार टोपोलॉजी की जब हम बात करते हैं एडवांटेजेस के हवाले से, तो मैंने यही कहा कि स्टार टोपोलॉजी अलाउज टू कन्वीनियंटली मैनेज द एंटायर नेटवर्क फ्रॉम अ सिंगल लोकेशन। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, पूरा का पूरा नेटवर्क एक सिंगल लोकेशन से मैनेज हो जाता है। ईच ऑफ द नोड इज इंडिपेंडेंटली कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब। जी हाँ, दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि हर जो डिवाइस है, हर जो नोड है, वो आपके पास इंडिपेंडेंटली सेंट्रली लोकेटेड हब से कनेक्टेड हो जाती है, आराम से कनेक्ट हो जाती है। द नेटवर्क विल कंटिन्यू फंक्शनिंग अनअफेक्टेड, मेकिंग द स्टार टोपोलॉजी अ स्टेबल एंड अ सिक्योर नेटवर्क लेआउट। तो हमारे पास जो भी सेंट्रली लोकेटेड डिवाइस होती है, जब आपके पास नोड उससे कनेक्ट हो जाती है, तो स्टार टोपोलॉजी के केस के अंदर उस नेटवर्क को सिक्योर और स्टेबल करने की जिम्मेदारी भी जो है इस सेंट्रली लोकेटेड डिवाइस, जिसको हम स्विच कह रहे हैं, और राइट नाउ हमारे पास एडवांस स्विचेस हैं जो कि हमारे पास लेयर 3 लेवल के स्विचेस हैं। जी हाँ, लेयर 3 जिसके अंदर सिक्योरिटी और राउटिंग की फीचर्स मौजूद होती हैं, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। तो वो तमाम की तमाम एडवांस मैनेजमेंट के लेवल पे हमारे पास एडवांस स्विचेस अवेलेबल हैं, जो कि हमारे पास स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी नेटवर्क को प्रोवाइड करने में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है जी, चलिए हम आते हैं सबसे पहले डिसएडवांटेजेस की तरफ बिफोर मूविंग टुवर्ड्स दी थर्ड टोपोलॉजी। तो डिसएडवांटेजेस की जब हम बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी की, तो सबसे अहम चीज क्या है कि इसके अंदर अगर आपके पास डिसएडवांटेज के लेवल पे अगर वो सेंट्रली लोकेटेड डिवाइस खराब हो जाती है, ठीक है जी, वो सेंट्रली लोकेटेड डिवाइस, वो स्विच खराब हो जाता है, वो किसी वजह से बैठ जाता है, वो मेल फंक्शनिंग की तरफ चला जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपके पास पूरा का पूरा डाउन हो जाएगा, पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाएगा आपके पास। हाँ, अगर स्टार टोपोलॉजी के अंदर अगर उस स्विच की कोई एक नोड काम नहीं कर रही, कोई एक पॉइंट काम नहीं कर रहा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा का पूरा नेटवर्क इफेक्टिवली चलता रहेगा, सिर्फ उस नोड के दरमियान में कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगी। लेकिन जब अगर वो पूरा स्विच खराब हो जाता है, तो ही हमारे पास जो है वो स्टार टोपोलॉजी जो है वो बिल्कुल आपके पास काम करने के काबिल नहीं रहेगी। तो सिंपल सी बात है कि अगर वो स्विच बैठ गया तो पूरी की पूरी स्टार टोपोलॉजी जो है वो आपके पास किसी काम की नहीं रहेगी, और हमारे पास जो है वो ऑपरेटिव फॉर्म में अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है जनाब, मूविंग ऑन टुवर्ड्स दी अदर टोपोलॉजी विच इज द रिंग टोपोलॉजी। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जैसा कि नाम से जाहिर है कि रिंग टोपोलॉजी जो है आपके पास एक रिंग की शक्ल में अवेलेबल होती है, जिसमें हर डिवाइस पिछली डिवाइस अगली डिवाइस से कनेक्ट होती है, और एक रिंग, एक सर्कुलर रिंग फॉर्म कर रही होती है। और इस रिंग टोपोलॉजी के अंदर डेटा जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा होता है। ठीक है जी। और हर डिवाइस को अगर आप देखें तो उसके दो नेबर्स नजर आते हैं, कि अगर हम बीच में देखें तो आपके पास एक उसका अपवर्ड एक नेबर है और एक उसका डाउनवर्ड नेबर है, या अगर एक सेंट्रली लोकेटेड डिवाइस है तो उसका इस तरफ भी नेबर मौजूद है और इस तरफ भी नेबर मौजूद है। हर डिवाइस जो है वो अपने दो नेबर्स को कैरी कर रही होती है, और एक रिंग लाइक आर्किटेक्चर, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म कर रही होती है स्टार टोपोलॉजी, सॉरी रिंग टोपोलॉजी जो है। ठीक है जी। तो इस रिंग टोपोलॉजी में हम एक रिंग फॉर्म कर रहे होते हैं, रिंग कॉन्सेप्चुअल रिंग होता है, और हमारे पास एक इनक्लोज्ड रिंग की शक्ल के अंदर आपके पास हर डिवाइस दूसरी तीसरी से और आपस में एक क्लोज नेटवर्क की फॉर्म में रिंग फॉर्म कर रही होती है, हैविंग टू नेबर्स। ठीक है जी। तो ये आपके पास रिंग टोपोलॉजी थी, और इस रिंग टोपोलॉजी के अंदर जो डेटा है वो आपका क्लॉकवाइज मूव कर रहा होता है। हाँ, अगर
اگر ہم اس رنگ ٹپالوجی کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اگر یہ رنگ کہیں سے بریک ہو جائے، اگر رنگ آپ کا کہیں سے بریک ہو جاتا ہے تو وہ پورا کا پورا آپ کا جو نیٹ ورک ہے جو رنگ ٹپالوجی پہ ویسٹ کر رہا ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، آپ کے جو بھی ڈیٹا پیکٹس ہیں وہ اس سرکولر رنگ کے اوپر، اس سرکل کے اوپر موو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہوا آپ کے پاس، کہ رنگ اگر آپ کا کہیں سے اسپوائل ہو جاتا ہے تو پورا نیٹ ورک ڈاؤن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جیسا کہ اسٹار ٹپالوجی میں اگر ایک نوڈ خراب ہو جاتی تھی تو لنک رائٹ رہتا تھا، لیکن یہاں پہ اگر ہم بات کرتے ہیں رنگ ٹپالوجی کی، اگر ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سا بس ٹپالوجی کی، تو اس کا ایک مین ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے، چیزیں مینج ہو جاتی ہیں، پھر میں کہہ رہا ہوں، لیکن مین ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ کہیں سے اگر اس کا یہ رنگ یا وہ جو بیک بون کیبل بس ٹپالوجی کے اندر تھوڑا سا اسپوائل ہوتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ کے پورا پورا ٹپالوجی جو ہے وہ آپ کی ڈاؤن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، چلے جی ہم آتے ہیں جناب اس رنگ ٹپالوجی کے بعد ایک اور ٹپالوجی کی طرف جو کہ میں نے لکھی ہوئی تھی جناب، وہ تھی جناب آپ کے پاس ہائبرڈ ٹپالوجی. ٹھیک ہے جی، ہائبرڈ ٹپالوجی سے مراد ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے جناب، آپ کے پاس نام سے ظاہر ہے ہائبرڈ ٹپالوجی سے مراد کیا ہے، ہمارے پاس کمبینیشن آف ٹو اور مور ٹپالوجی. جی ہاں، پلیز نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا. ہائبرڈ ٹپالوجی سے مراد کیا ہے، ہائبرڈ دو چیزوں کی ہم بات کی جاتی ہے، دو یا دو سے زیادہ ٹپالوجیز کو جب آپس میں انٹیگریٹ کیا جاتا ہے. یعنی میں اسٹار اور رنگ کو کنیکٹ کر دوں، رنگ بس اور اسٹار تینوں کی کنیکٹیوٹیز بنا دوں، یعنی آپس میں ایک ٹپالوجی کو دوسری ٹپالوجی سے جب لنک کیا جا رہا ہوتا ہے، ایک ٹپالوجیکل نیٹ ورک کو دوسرے ٹپالوجی بیس نیٹ ورک کو آپس میں لنک اپ کیا جا رہا ہے، پاسبل ہے، کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح کی جو ٹپالوجی جب ہمارے پاس حاصل ہوتی ہے تو ہمیں اس ٹپالوجی کا نام ہائبرڈ ٹپالوجی کے نام سے ظاہر ہوتا ہے، سامنے آتا ہے اور ملتا ہے. تو ڈیفینیشن کیا بن جاتی ہے، کمبینیشن آف ٹو اور مور ٹپالوجیز، کم سے کم تو دو چاہیے نا جناب، اور مور آپ کے پاس اسٹار بس اور رنگ ہو سکتی ہے آپ کے پاس. تو یہ جو آپ کے پاس ایک سے زیادہ ٹپالوجیز کی جو کمبینیشن ہوتی ہے فار دا پرپز آف سینڈنگ اینڈ ریسیونگ دا ڈیٹا. ٹھیک ہے جی، تو جب ہم ایک سے زیادہ ٹپالوجیز کو آپس میں کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وی کم اکراس نیو ٹائپ آف ٹپالوجی وچ از کالڈ دی ہائبرڈ ٹپالوجی. اور پھر ہم اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا اگر ایڈوانس فارم کے اندر لے کے جاتے ہیں تو جو ہمیں کانسیپٹ ملتا ہے دیٹ لیڈس ٹو دی ورلڈ وائڈ ویب، WWW کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمارے پاس اسٹیبلش ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا، مختلف نیٹ ورکس ہیں، آرگنائزیشن کا اپنا نیٹ ورک ہے، وہ آپ کے پاس ایک اور ورلڈ آپ کے ایک لوکل فزیکل انوائرمنٹ سے نکل کے راؤٹر بیس کمیونیکیشن کے اوپر جا رہا ہے، اور پھر ڈیٹا نے وہاں سے باہر سے آپ کے نیٹ ورک کے اندر آنا ہے، آپ کے نیٹ ورک سے ورلڈ وائڈ ویب کی طرف جانا ہے، انٹرنیٹ کلاؤڈ کی طرف جانا ہے. تو اس کا مقصد کیا ہے، ٹپالوجیز تو ہوں گی نا، مختلف جگہوں پہ مختلف ٹپالوجیز ڈپلوائے ہوئی ہوں گی، اور ٹپالوجیز کو آپس میں کنیکٹ بھی کیا گیا ہوگا. جیسی آرگنائزیشن کو آسانی لگی ہوگی اس نے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ٹپالوجی ڈپلوائے کی ہوگی، اور اس ٹپالوجی کو ہم نے ایک ٹپالوجی کو دوسری ٹپالوجی سے کنیکٹ کیا ہوگا. جی ہاں، تو جب بات آئی ایک ٹپالوجی کو دوسری ٹپالوجی سے لنک اپ کرنے کی، جو ٹپالوجی اسٹیبلش ہوئی دیٹ از دی ہائبرڈ ٹپالوجی. So that was all for today. I hope ٹپالوجی والی چیز کو ہم سمجھ پائے ہوں گے. اس لیکچر کو پلیز ضرور دیکھ لیجیے گا، ڈائیگرام بس سمپل رکھیے گا آپ اس کو، بڑی سمپل اور بڑے آسان الفاظ میں نے جو آپ کے پاس رائٹ پرووائڈ کیا ہے اس کو میں نے رکھنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ اپنی ایگزام کی ریکوائرمنٹس کو بھی فلفل کر سکیں اور بآسانی اس لیکچر کو جو آج ڈیلیور کیا گیا ہے ٹپالوجی کے حوالے سے وہ انڈرسٹینڈ بھی کر سکیں. ٹھیک ہے جی، تو آئی ہوپ اب آپ کو نیٹ ورک کے کانسیپٹ کمپلیٹلی سمجھ میں آ گئے. ٹھیک ہے جناب، تو دس ہم نے نیٹ ورک والی چیز یا نیٹ ورک کے حوالے سے جو بھی ٹاپکس تھے اس کو ہم نے کمپلیٹلی کور کر لیا ہے، اور وہ تمام کے تمام ہم نے انڈرسٹینڈنگ نیٹ ورکس اور ڈیٹا کمیونیکیشن کے حوالے سے جو بیسک ریکوائرمنٹس تھی ہم نے اس کو فلفل کر دیا. ٹھیک ہے جی، آئی ہوپ یہ انٹرسٹنگ رہا ہوگا. انشاءاللہ العزیز اب آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے جی، ٹیک کیئر آف یور سیلف. انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.